एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा एषा दिस् this ब्राह्मी Brahmi स्पिरिचुअल spiritual स्थितिः स्थितिः सिचुएशन situation पार्थ Partha, ओ सन ऑफ पृथा O son of Pritha, ना na नेवर never एनम enam दिस this प्राप्य prapya अचीविंग achieving विमुह्यति vimuyati वन इज bewildered one is bewildered स्थित्वा sitva being situated being situated अस्याम asyam in this in this अंतकाले antakale at the end of life at the end of life अपि api also also ब्रह्म निर्वाणम brahma nirvanam the spiritual kingdom of God the spiritual kingdom of God Richati ruchati one attains one attains translation by Srila Prabhupada ki jai jai. that is the way of spiritual That is the way of spiritual and godly life and godly life, after attaining which after attaining which a man is not bewildered. a man is not bewildered. If one is thus situated, If one is thus situated, even at the hour of death, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. one can enter into the kingdom of God. पपट by Srila Prabhupada की जय Jai. पढ़ना कोई पपट पढ़ना Mataji, मैं पढ़ूं? पढ़ो One can attain Krishna consciousness or divine life at once, within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. It is only a matter of understanding and accepting the fact. Kat- खटवांग खटवांग Katavanga Maharaj attended this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. Nirvana means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life. But Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. To be engaged in the transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. In the material world, there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness, even during this life, is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness
has certainly already entered the kingdom of God. Brahman is just the opposite of matter. Therefore, Brahmastiti means not on the platform of material activities. Devotional service of Lord is accepted in Bhagavad Gita as the liberated stage. Sagunan Samtitya Shama samtityayantan Samtitayantyan Brahma Bhuyaya aya Kalpate. kalpate. Hmm. Therefore, Brahma Sthiti is liberation from material bondage. Bhakti Vinod Thakur has summarized this second chapter of Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In Bhagavad Gita, the subject matter are Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents from the complete text. Thus, Bhakti Vedanta Vedanta purport purport to to the the second second chapter. chapter of Srimad Bhagavad Gita and the matter of this content, its content. जय हरी बोल हरी बोल हरी बोल, वेरी गुड। सो अभी हम देखते हैं इस श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को। तो इससे पहले के श्लोक में कृष्णा ने अर्जुन की आइडेंटिटी क्लियर की। अर्जुन को बताया फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में फर्क क्या होता है अर्जुन, प्लस अर्जुन डिटैच्ड कैसे रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपने भगवान के लिए कैसे जीना चाहिए। तो प्रॉपर अच्छे से क्लैरिटी दे दी कृष्णा ने अर्जुन को। अभी उसके बाद कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरीके से स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग, ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ हमने पिछले टेक्स्ट में देखी थी। किस तरीके से किसको कृष्णा बोल रहे हैं स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ? स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ कृष्णा बोल रहे हैं जिसमें इंसान ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया हो और उसके बाद फ्री ऑफ डिजायर रह रहा हो, और उसके बाद मतलब बिना किसी इच्छा के सारी इच्छाओं को त्याग दिया हो। मटेरियल डिजायर कौन सी इच्छा है? वो भी अपनी बॉडी को खुश करने वाली, मन बुद्धि और अहंकार को खुश करने वाली। तो मन बुद्धि अहंकार और बॉडी, ये चार आइटम को खुश करने वाली सारी इच्छाओं को त्याग दिया हो। उसके बाद जिसने अपने अंदर जितना भी प्रोप्राइटरशिप है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये चीज़ें मेरी है, जिसने अपने पूरी तरह अहंकार को त्याग दिया हो और ममत्व को त्याग दिया हो, और फिर अपने अंदर शांति एस्टैब्लिश की है, परफेक्ट शांति एस्टैब्लिश की है, ऐसा इंसान जो है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ जीता है। ऐसा ही इंसान जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ जीता है। तो जिस इंसान ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, जिस इंसान अहंकार से बाहर आया है और खुद अपने आप को खुश करने वाली इच्छा है, ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक इच्छा है, लेकिन अपने आप को खुश करने वाली इच्छाओं को त्याग दिया है। जैसे हम देखते हैं राधा रानी ने त्यागा था, लेट जाकर उद्धव ने त्यागा था। उद्धव का शुरुआत में तो ज्ञान योग पूरा अपने आप को ही खुश करने के लिए था, लेकिन लेट जाके उसने त्यागा था। लक्ष्मण ने, बलराम जी ने वो प्रकट होते ही त्याग दिया था। ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही उनके अंदर था ही नहीं खुद को खुश करने वाला ऐसा कोई इच्छा। हमेशा इट वॉज ऑल अबाउट श्री राम जी एंड कृष्णा। राधा रानी के लिए इट वॉज ऑल अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। गोपियों के लिए भी इट वॉज ऑल अबाउट कृष्णा। उनके अंदर भी ऐसा था नहीं कि मेरी बॉडी मेरा मन बुद्धि अहंकार को खुश करना है। सो ऐसे सारे जो है, जैसे हमारे भक्तिदान सरस्वती महाराज है, उन्होंने भी कभी खुद के बारे में सोचा नहीं। इतने अच्छे थे, दिखने में अच्छे थे, लंबे चौड़े थे, चाहते तो शादी भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं करा उन्होंने बस भक्ति भाव में अपने आप को लगा दिया, कृष्ण के चरणों में अपनी शरणागति ले ली। सो इन लोगों को हम क्या कहेंगे? स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ जीते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना अहंकार होता है ना ममत्व होता है, ये मेरा वो मेरा। उसके बाद वो अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, वो बस किसके लिए जीते हैं? वो अपनी परफेक्ट पीस अचीव करते हैं, प्रॉपर शांति अचीव करते हैं सिर्फ कृष्ण के लिए जीकर। तो ये दिस इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ, ऐसे कह रहे हैं कृष्ण। और जब ये स्थिति आ जाती है इंसान के अंदर, उसके बाद वो इंसान कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जाता। बिविल्डरमेंट मतलब क्या है? कंफ्यूजन। तो वो इंसान कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जाता। आज भी कितने सारे लोग कंफ्यूजन में घूमते हैं, एक ए ऑप्शन ले ले या बी ऑप्शन ले ले, सी ऑप्शन ले ले या डी ऑप्शन ले ले। छोटी छोटी चीज़ों में भी इंसान बहुत बौखला जाता है। तो मैन कभी कंफ्यूज नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा इसका क्या कनेक्शन है कंफ्यूजन के साथ? तो सिंपल से एग्जाम्पल है, जब आप एक आध्यात्मिक लाइफ जीने लग जाते हो
जिसमें आपके अंदर अहंकार नहीं होता और अपने आप को खुश करने वाली ऐसी कोई डिज़ायर नहीं होती, सिर्फ कृष्ण को खुश करने के लिए डिज़ायर होती है। तो नेचुरली दो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, ए और बी। तो अंदर से परमात्मा से गाइडेंस से ही आप नेचुरली कोई एक ऑप्शन चुन लेते हो। आप कंफ्यूजन में कभी नहीं रहते, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग नहीं तो उनको क्लैरिटी ही नहीं होती। मैं एक ये देख रही थी, तो वो डॉक्टर है। तो उन्होंने अपने जीवन का 18 साल उन्होंने अपनी डॉक्टरी करी, और 18 साल बाद उनको पता चला कि वो डॉक्टरी करने के लिए नहीं बने हैं, वो कुछ न्यूरोलॉजी का कुछ करने के लिए बने हैं। फिर उन्होंने न्यूरोलॉजी में भी कुछ और कर लिया। तो उन्होंने 18 साल जो नहीं करना था वो किया, जबरदस्ती किया। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उसके बाद उन्होंने दूसरा कुछ करना शुरू किया। इसका मतलब 18 साल वो बिविल्डरमेंट में थे डॉक्टर। 18 साल तक कंफ्यूजन में थे कि मैं पहले तो 12th के बाद कंफ्यूजन में थे, इंजीनियरिंग करे मेडिकल करे क्या करे। उसके बाद डॉक्टरी करी। डॉक्टरी करते वक्त भी जब वो एमडी कर रहे थे तब भी सोच रहे थे मैं सही कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ। फिर एमएस किया, उसमें भी मैं सही कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया, उसमें भी मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। तो हर चीज़ में उनके अंदर हमेशा लगता था कि शायद हो सकता है मैं गलत भी कर रही हूँ। तो ऐसे करके 18 साल में उनके बड़े बड़े उन्होंने हॉस्पिटल्स में काम किया, बाहर के देशों में जाके हेल्थ प्रोग्राम्स पे काम किया। वहाँ भी उनको लगता था मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैं घूम तो रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो कांस्टेंट बिविल्डरमेंट 18 साल, एक तो डॉक्टरों का करियर ही 8 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बाद 18 साल उन्होंने काम किया है। सो 18 + 8 कितने हो गए, 24 साल। 24 साल ही उनका ऐसे चलता रहा। उसके बाद जाकर कहा उनको एक अलग दिशा मिली और अलग काम किया है। तो क्या होता है कि मैन ना बिविल्डर्ड नहीं रहता जब उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है जल्दी से। जो बच्चे बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में होते हैं उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स बड़े कम रहते हैं। उनको बहुत जल्दी परमात्मा उनको गाइड कर लेता है कि तू ये कर ले तू वो कर ले। उनको अंदर से ही जवाब मिलता रहता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा आगे जाकर ऐसे रिग्रेट्स में नहीं जीते कि मैंने ये क्या कर लिया, टाइम ही वेस्ट कर लिया, ये कर लिया। ऐसा कुछ होता नहीं उनकी ज़िंदगी में। वो बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में आएंगे तो चॉइसेस बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगे, लेकिन उनको पहले से ही क्लैरिटी होती है मैंने करना क्या है। सो ऐसा इंसान जो है जो स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ जीता है, जैसे प्रभुपाद पहले से ही स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ जीते थे। उनके अंदर भी ऐसा खास कोई ममत्व या अहंकार नहीं था। प्लस जो भी करते थे वो राधा रानी और कृष्ण की राधा श्याम सुंदर जी की खुशी के लिए करते थे। उनको डीटीज पापा ने दिए थे, तो जो भी करते थे उनकी खुशी के लिए करते थे। तो वो नेचुरली ही इस आध्यात्मिक लाइफ में थे। तो उनको पहले से ही क्लैरिटी होती थी कि मैंने इंग्लिश पढ़ना है, फिर मैंने थोड़ा सा फार्मेसी का ज्ञान लेना है, फिर मैंने लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए मैंने नई नई दवाइयाँ बनानी है। तो प्रभुपाद इन्वेंट भी बहुत अच्छे से कर लेते थे, नई नई इन्वेंशंस भी करते थे। उन्होंने खुद अपनी लेबोरेटरी लॉन्च की थी। तो उनके अंदर खुद परमात्मा उनको गाइड, उनको क्लैरिटी पहले से ही थी करना क्या है ऐसी। वो कभी ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहे। सो आफ्टर अटेनिंग तो मनुष्य आध्यात्मिक जगत में जैसे ही आ जाता है ऐसी वाली लाइफ जीने लग जाता है, उसको कंफ्यूजन नहीं होता। सो इफ वन इज दस सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ, अगर आप मरते वक्त भी कंफ्यूजन से बाहर आए तो भी चलेगा, लेकिन कभी तो बाहर आओ। पूरी लाइफ ही कंफ्यूजन में नहीं जी सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इसमें भी कंफ्यूजन है, निर्णय लेना नहीं आ रहा है, आगे जाओ तो मुझे निर्णय ही लेने नहीं आ रहा। निर्णय लेना नहीं आ रहा है ये इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, आपको पता है। जिस इंसान को कभी डिसीजन ही नहीं लेना आता ना, उससे पता चलता है ना उसने अपनी कभी इंट्यूशन पावर डेवलप की है, ना उसने अपने इंटेलिजेंस पे काम किया, ना अपने टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश की उसने। उसको जो भी भगवान ने दिया, हाथ पाँव दिया आंखें दी, उसने ना कभी कोई रीडिंग करी है, ना उसने कभी ऐसे व्यक्तिमत्व ऐसे लोगों से मिले हैं जो विचारवंत है, जो विचार करते हैं और ऑब्जर्वर्स है थिंकर्स है। ऐसे लोगों से नहीं मिला है वो इंसान, ना उसने मिलने की कोशिश की है। तो इस तरीके से पता ही चल जाता है कि उसने कभी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं की है। तो एटलीस्ट आप मरते दम तक तो, मरते समय भी एक बार आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। आपका जो कृष्णा पे डाउट है ना, है क्या कृष्णा, दिखते तो है नहीं, है क्या सच में, है क्या, इतना जाप करते हैं दिखते तो है नहीं। इस डाउट से अगर मरते वक्त भी बाहर आ गए इस कंफ्यूजन से, तो आप आराम से वैकुंठ में जा सकते हो। वन कैन एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड।
तो सबसे पहले कंफ्यूजन से बाहर आना है। छोटे छोटे कंफ्यूजन से बाहर आओगे तब बड़े बड़े कंफ्यूजन से बाहर आना शुरू करोगे। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होती है कि है क्या, कृष्णा है क्या, या लाइट भगवान है या कृष्ण भगवान है। लाइट भी भगवान हो सकती है, ब्रह्मज्योति भी भगवान हो सकती है, हृदय में जो परमात्मा का दर्शन होता है वो भी तो भगवान हो सकता है। अरे गणेश फेस्टिवल इतना बड़ा है वो भी तो हो सकता है, शिव जी का फेस्टिवल बड़ा है वो भी हो सकता है, ब्रह्मा का इतना बड़ा टेम्पल है सिंगापुर में, यूके में, इंडिया में, वो भी तो भगवान हो सकते हैं। इतने सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं शुरुआत में कई सारे बच्चों को। तो एक बार तो कभी तो बाहर आना पड़ेगा। मरते दम तक भी अगर बाहर आ गए तो आप आराम से वैकुंठ जा सकते हो। अब ये हो गया आध्यात्मिक कन्फ्यूजन, लेकिन आध्यात्मिक कन्फ्यूजन तभी सॉर्ट आउट होता है जब मटेरियल कन्फ्यूजन से भी आप बाहर निकालने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हो। मटेरियल कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हमेशा ही मटेरियल सॉल्यूशन काम नहीं आता, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्मूला होता है। लेकिन सारे ही मटेरियल कन्फ्यूजन से अगर इकट्ठे बाहर निकलना है तो एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला भी काम कर जाता है। इसलिए एक इंटेलिजेंट इंसान होता है वो स्पिरिचुअल फॉर्मूला की शरणागति लेगा, रादर देन कि भौतिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करने से ज़्यादा। ठीक है। सो परपॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ विद इन अ सेकेंड। मतलब आपको एक सेकंड की भी जरूरत नहीं है और आपको साक्षात्कार हो सकता है, कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। और वन में नॉट अटेन इन एंटायर मिलियंस ऑफ बर्थ्स। तो प्रभुपाद कहते हैं मिली ना, अगर भक्ति मिली, अगर आत्मा साक्षात्कार हुआ ना कृष्णा का, तो एक सेकंड में भी हो सकता है। लेकिन नहीं हुआ ना, तो 10 लाख क्या, 10 करोड़ जन्म लेते रहो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ। मिलियंस मतलब आप 10 मिलियन ले लो, 100 मिलियन ले लो, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 10 करोड़ बार भी जन्म लिया ना तो भी आपको ये स्टेट नहीं आ सकती आत्म साक्षात्कार वाली, या भगवान के साक्षात्कार। भगवान का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है, तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। देखो कितना बड़ी बात कही है प्रभुपाद ने। ये दो वर्ड्स हमारे लाइफ में अगर हमने इसकी पूंजी बना ली ना, अपने वॉलेट में आपने कार्ड पे लिख लिया ना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, तो आप ये दो वर्ड्स ना अपनी लाइफ में किसी भी चीज में डाल लो। सपोज आपको एक कॉलेज ए में एडमिशन चाहिए था, नहीं मिला, कॉलेज बी में मिला, चलो बी भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस बुरे होते हैं और एक ही कॉलेज अच्छा होता है, बी भी अच्छा हो सकता है। आपके वॉलेट से आप कार्ड निकालोगे, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, यस आई अंडरस्टैंड ये कृष्णा का प्लान है, एंड आई एक्सेप्ट दिस इज कृष्णा का प्लान। वापस कार्ड वॉलेट में डाल दो, अपनी पर्स में डाल दो या अपने सैक में डाल दो, बैग में डाल दो। फिर आपको कहीं जाना था, कॉलेज में या स्कूल में कुछ खाना था और वो खाने की डिश नहीं मिली लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव मिली, फिर आपने वो कार्ड निकाला बैग से, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, ओ ओ आई अंडरस्टैंड, कृष्णा नहीं चाहते थे मैं वो डिश खाऊं, ये खाऊं, चलो ठीक है, ओ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कृष्णा की इच्छा में एक्सेप्ट करता हूँ। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग दो वर्ड्स अगर हमने फॉलो किए ना, इस दो वर्ड्स में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें ये भौतिक जगत के महान महान इतने बड़े बड़े सागर है, उसको क्रॉस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। प्रभुपाद का फॉर्मूला कभी फेल हो ही नहीं सकता, उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है और फिर हमें खिलाया है। तो जैसे एक पंछी होता है, खुद एक खाने को छोटे 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 टुकड़े करता है और अपने बच्चे के मुंह में डालता है। बच्चा सिर्फ अपनी चोंच खोल के बैठा होता है, पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो चोंच खोल के नीचे नेस्ट में बैठे होते हैं, और ऊपर से उनकी माँ जो भी खाना है उसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा छोटा करके करके अपने बच्चे के मुंह में डाल रही होती है। तो ये जितने भी वर्ड्स है, देखो प्रभुपाद ने इतने हैं, कृष्णा ने कितने वर्ड्स बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कृष्णा ने कितने वर्ड्स बोले, 13 वर्ड्स श्लोक में। और प्रभुपाद ने कितने बोले, अगर हम इसको काउंट करेंगे या एटलीस्ट आएगा 500 तक, 500 का तो टेक्स्ट आएगा। हो गया ना, पंछी की तरह हो गया ना, माँ जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डालती है, वैसे ही हुआ, किया है ना प्रभुपाद ने मेहनत। तो प्रभुपाद ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग। मैं सच बता रही हूँ, ये दो वर्ड्स आपको आपके लाइफ के हर संघर्ष से बाहर निकाल सकते हैं, हर संघर्ष से। कोई भी, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेनी है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो
और हाइपोथेटिकल मतलब वर्स्ट कम वर्स्ट, कि चलो कोई इंसान किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है, किसी ने बहुत ही बड़े इसमें फंसा दिया है, और उसमें भी अगर वो अपने वॉलेट से ये कार्ड निकालेगा और उस पे लिखा होगा ना अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, वो तुरंत उसमें से बाहर आ जाएगा, वो सफर नहीं करेगा, उसमें से पहले बाहर आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो स्थित हो जाएगा आध्यात्मिक जगत में, और उसके बाद फिर उसकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जानी है। अंडरस्टूड? इस बोलना हरी कथा चल रही है, जाओ। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट, तो आपको जो भी फैक्ट्स है अपने लाइफ के उस पे अप्लाई करो। आप अभी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी फैक्ट ले लो, पास्ट का ले लो, प्रेजेंट का ले लो, कोई भी फैक्ट ले लो और उसको ये दो वर्ड्स अप्लाई करो, आप करो अपनी अपनी प्रैक्टिस। किसी का एग्जाम्पल लेना है तो बता दो, हम कर लेते हैं। बोलना है क्या, किसी को शेयर करना है एग्जाम्पल? हाँ जी। माता जी फैक्ट बोलना है, क्या बोलना है? कुछ भी बोलो, आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। बार बार दूध पीने का मन। हाँ। नहीं है कोई? चलो फिर आप माता अपना जी, अपना, हाँ जी। माता जी, अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि किसी इंसान की जो है रिसेशन में जॉब चली जाती है हाँ एंड उनके पास अब बिल्कुल भी मनी नहीं बची है, तो इस हाँ, बात को वो इंसान कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? मतलब ये तो काफी गंदी सिचुएशन है। सही बात है। सो इट इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। ओ आई अंडरस्टैंड कि कृष्णा ने ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में लाई है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कृष्णा अभी मुझे जॉब पे नहीं रखना चाहते। तो कृष्णा क्या चाहते हैं, अब उसका परमात्मा उसको जवाब देगा। अंडरस्टूड? फिर उसका परमात्मा कुछ भी जवाब दे सकते हैं। कृष्णा चाहते हैं नेक्स्ट जॉब मिलने तक मैं भगवत गीता पढूं। कृष्णा चाहते हैं मैं अपने सेविंग्स को यूज करूं। कृष्णा चाहते हैं मैं अपने रिश्तेदारों से हेल्प ले लूं। कृष्णा चाहते हैं कि मैं नया जॉब के लिए अप्लाई करूं, मैं 50 कंपनीज में अप्लाई करूं। कृष्णा चाहते हैं मैं घर पे बैठ के फॉरेन कंपनीज में अप्लाई करूं। कृष्णा चाहते हैं मैं एक नई डिग्री ले लूं। उसको कुछ ना कुछ तो अंदर से कृष्णा पक्का गाइड करेंगे। लेकिन जब तक वो लैमेंट करेगा ना, हाय मेरा सब क्या हुआ, नौकरी चली गई, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे, जब तक वो उस स्थिति में रहेगा। अंडरस्टैंडिंग का ऑपोजिट क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्टिंग का ऑपोजिट क्या होता है? डिनायल। तो जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिनायल में रहेगा ना फैक्ट के, तब तक वो उसके अंदर का परमात्मा की आवाज उसको सुनाई नहीं देगी, और उसको सॉल्यूशन सामने होते हुए, मतलब सामने थाली में सॉल्यूशन है लेकिन उसको सॉल्यूशन दिखेगा नहीं। अंडरस्टूड? यस माता जी। So, it is only a matter of understanding and accepting the fact. तो खटवांग पैसे खत्म हुए हैं, तो पैसे के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लोग अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, बैंक से लोन ले लो, या फिर अपना सोना गिरवी रख दो, या कोई लैंड को मॉर्गेज रख दो, घर को मॉर्गेज रख दो। वेल विशर्स जो आप पे भरोसा करते हैं, उनसे मांगो और उनको बोलो कि हम रिटर्न करेंगे। किसी ना किसी का तो भरोसा जीता होगा, माँ बाप का जीता होगा। माँ बाप का भरोसा तोड़ा होगा तो माँ बाप तो देंगे नहीं। किसी दोस्त का जीता होगा कभी भरोसा, कोई दोस्त आप पे भरोसा कर रहा है तो वो देगा पैसे। अगर वो किसी भी दोस्त के साथ अच्छे से दोस्ती रखी नहीं है, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो वो आपको देगा नहीं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन मुझ पे ट्रस्ट करता है। जो मुझ पे ट्रस्ट करता है मैं उसकी हेल्प मांग सकता हूँ, और मैं उसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। और फिर आपने उसको बहुत ही तरीके से उसको रिटर्न भी कर देना है बाद में। ऐसे करके फंडिंग ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। फंडिंग के लिए बहुत सारे लोग, फिर कई सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट पे भी फंडिंग दे देते हैं। बैंक 13% दे देती है या 8% पे देती है। पर्सनल जो लेंडर्स होते हैं वो 5% पे भी दे देते हैं। कुछ लोग 4% पे भी दे देते हैं, डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हो। फंडिंग ऑप्शंस के लिए तो पूरा ब्रह्मांड कम पड़ जाए। इतने सारे लोग जो स्कैम करते हैं वो फंडिंग ऑप्शंस लेकर ही बाहर की कंट्रीज में भाग जाते हैं।
कौन था वो विजय माल्या, 23,000 करोड़ का किया था उसने, फंडिंग ले लेकर ही करा था उसने। अंडरस्टूड? तो बेईमान लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ईमानदार लोगों को क्यों नहीं फंडिंग मिलेगी अगर बेईमान लोगों को फंडिंग मिल रही है तो? अंडरस्टूड? ये बस लैक ऑफ फंड, हमारे इंडिया में ना लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है। लोगों को मैथ्स आता है लेकिन फाइनेंस नहीं आता, तो लोग बहुत पैनिक करते हैं पैसे को लेकर। मतलब इट यू नीड टू स्टडी लिटिल बिट, और उसके बाद पैसे नहीं होंगे तो कोई पैनिक नहीं करेगा, सबको पता होता है अरेंज कैसे करना है। फंडिंग ऑप्शंस होते हैं बस, ठीक है? अंडरस्टूड? चाइना में देखो, चाइना में, अमेरिका में कोई पैनिक नहीं करता। जिसको उनको पहले से बचपन से ही सिखाया जाता है फाइनेंस होता क्या है, कैसे अरेंज करना चाहिए क्राइसिस में, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, पैनिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो लोग कभी पैसे के पीछे भागते नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा सर में सिक्योरिटी रहती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। देश की इकोनॉमी भी डाउन हो गई तो भी हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और हम अच्छे से जी सकते हैं। सो ये सिर्फ इंडिया में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, तो वो कम लोग सिक्योरली रह पाते हैं, और जिनको नहीं है वो डर के मारे मरते दम तक कमाते ही रहते हैं, डरते ही रहते हैं खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो कमाते ही रह जाते हैं फिर। सो इट इज अ ओनली मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। ठीक है? आई बात समझ में? सो ये दो वर्ड्स अगर आपने हमेशा पूंजी की तरह बांध के रखे ना अपने साथ, तो आपको कृष्णा का हाथ हर एक चीज में समझ में आएगा। एक प्रभु जी थे हमारे, उन्होंने लेक्चर दिया था 2009 में। उन्होंने बताया था लर्न टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला था महाराज ने उनको बताया था जब उनके लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी, तो महाराज ने उनको पूछा था कि लर्न टू सी कृष्णाज हैंड। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था इसमें कृष्णा का क्या बेनिफिट हो सकता है, मेरा बुरा करके कृष्णा को क्या मजा आया है ये नहीं पता चल रहा, उसमें उनका क्या हैंड है। इससे तो ये बुरा, मेरा जो बुरा हुआ है उसकी वजह से तो मेरा जॉब भी ठीक से नहीं हो रहा है, मैं इंडिया की टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इंडिया भी नहीं आ पा रहा हूँ, इसमें मेरा भला क्या हुआ है? तो महाराज ने उनको बोला कि तुम बस अपना दिमाग शांत करो एंड लर्न टू सी कृष्णाज हैंड। फिर दूसरे दिन जाप करते करते उनको स्वयं अंदर से कुछ ये आया था, रियलाइजेशन आया था कि कृष्णा ने ये सब कुछ किया ताकि वो वहाँ का जो कॉन्ग्रीगेशन थे उसको अच्छे से टाइम दे पाए। पहले वो टाइम नहीं दे पाते थे, तो उनको टाइम दे पाए, उनको अच्छे से हेल्प कर पाए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और फिर पैरेलली बाकी कोई कृष्णा प्लान कर लेंगे उनके लिए। ऐसे करके उनको रियलाइजेशन हुआ, और फिर डिट्टो वैसे ही हुआ। उन्होंने थोड़े महीने पूरी तरह 100% कॉन्ग्रीगेशन को अटेंशन दिया, तो जितने भी सबका कुछ ना कुछ चल रहा था वो बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने। एंड देन अपने आप ही आगे के रास्ते खुलने लग गए, और उन्होंने बहुत अच्छे से फिर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। तो द थिंग इज कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग। उन्होंने समझी बात, कृष्णा की बात समझी और एक्सेप्ट किया, कृष्णा की इच्छा को एक्सेप्ट किया कि कृष्णा कुछ तो चाहते हैं, मुझे बस पता करना है क्या कृष्णा चाहते हैं। तो आपको अपने परमात्मा के साथ जो कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मुश्किल है, जब मुश्किल घड़ी आती है तो टाइम लगता है ढूंढने में, लेकिन जवाब जरूर मिलता है, 120% आंसर मिलता है। बस हैबिट नहीं होती ना, हमने अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ये दो वर्ड्स को यूज करने की हमें हैबिट नहीं होती कि कृष्णा की हर चीज में अगर हर रोज हैबिट डाली। मेरे साथ ही हुआ था, मुझे भी हैबिट नहीं थी, बट मैंने जब एक बहुत मुश्किल समय आया था तब मैंने कॉन्स्टेंटली सोचा व्हाट डज कृष्णा वांट, व्हाट डज कृष्णा वांट, मैं कैसे समझूं कृष्णा का इसमें हाथ है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड इट इज कृष्णाज हैंड, मैं एक्सेप्ट कैसे करूं कि कृष्णा की इच्छा है ये वो, ऐसे करके बहुत अपने आप को ग्रिल किया था मैंने। एंड देन मैं तब उसका जवाब नहीं आ रहा था, तो मैंने डेली लाइफ में ये अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अप्लाई करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों में, खाना मिल गया उसमें भी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, दूध पीने के लिए मिल गया उसमें भी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, एक्सरसाइज करने का चांस मिला तो भी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग। तो छोटी छोटी चीज़ों में मैंने कृष्णा के हाथ देखना शुरू किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, हैबिट ही होने लग गई हर चीज में कि कृष्णा ये अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहा है एक्सरसाइज करने की, कृष्णा खाने की अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहा है, कृष्णा दूध पीने की अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं, कृष्णा नया ड्रेस खरीदने की अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं, कृष्णा क्यों दे रहे हैं, ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग। फिर धीरे धीरे वो गुत्थी खुलने लगी। फिर जब भी पैनिक सिचुएशंस आए तो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग का वो थॉट प्रोसेस ही बन गया था
कि हाउ टू सी कृष्णाज हैंड इन इट, हाउ टू सी कृष्णाज, कृष्णा डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहते हैं। दैट्स वाई कृष्णा ने ये चैलेंज थ्रो किया है। कृष्णा डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसके पीछे कृष्णा का कुछ तो हाथ है, वो बस मैंने ढूंढ निकालना है। सो दैट काइंड ऑफ आपका एक बार आपका एल्गोरिदम बन गया सोच का कि कैसे देखना है कृष्णा का हाथ, फिर इट जस्ट बिकम्स योर नेक्स्ट हैबिट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये प्रभुपाद के जो वर्ड्स है ना, प्रभुपाद के वर्ड्स बहुत पोटेंट है। जितने कृष्णा के श्लोक पोटेंट है ना, उतने ही प्रभुपाद का एक एक वर्ड जो है वो पोटेंट है। बहुत शक्ति है उसमें, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतनी शक्ति है प्रभुपाद के शब्दों में। दे आर लाइक डायमंड्स। मतलब प्रभुपाद के इन वर्ड्स के सामने ना हम 100 बार जन्म लेके ना अपने आप को प्रभुपाद के सामने सरेंडर करें और अपना सर काट के डाले, तो भी हम इनफ थैंक यू नहीं बोल सकते प्रभुपाद को। उन्होंने हमारे ना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ना बड़ी छोटी छोटी तरीके से ना भगवत गीता में शुरुआत में ही सॉल्व कर रखे। जैसे भागवतम के पहले 2 कैंटोज में प्रभुपाद ने अपनी पूरी जान, अपना दिल, सब कुछ डाल दिया है। वैसे ही भगवत गीता के पहले 2 चैप्टर्स में और इंट्रोडक्शन में खासकर, इसमें प्रभुपाद ने अपनी पूरी जान डाल दी है। इतना कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि जो हमें पूरी लाइफ खुद से समझने में तो बहुत ही मुश्किल होगा। सो खटवांग महाराज थे, उन्होंने लाइफ के लास्ट के फ्यू मिनट्स में कृष्ण भगवान को सरेंडर कर दिया था। तो वैसे ही हमारे जो ये थे मतलब जितने भी आप देखो भक्त जो होते हैं ना, वो लास्ट फ्यू मिनट्स में बहुत सीरियस हो जाते हैं जब भी उनका शरीर छोड़ना होता है। लास्ट फ्यू मिनट्स में आप देखोगे उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह बंद रहता है उनका, लेकिन देखिए दे शट डाउन देयर माउथ एंड उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। एंड एट दैट टाइम दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कृष्णा। तो लास्ट मोमेंट में भी अगर आप भगवान के चरण कमलों को याद करते हो, तो भी आपको वैकुंठ प्राप्ति हो सकती है। सो निर्वाणा मीन्स एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मटीरियलिस्टिक लाइफ। निर्वाणा मतलब क्या होता है कि आप भौतिक जगत की प्रोसेस ही बंद कर देते हो। भौतिक जगत की प्रोसेस, भौतिक जगत की लाइफ की प्रोसेस क्या होती है? पूरा सर्कल इच्छाओं का है। इच्छा से शुरू होता है, इच्छा पे ही खत्म होता है। मरने वाला इंसान जो रिग्रेट में मरता है, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? इच्छाएं जो अधूरी रहेगी। तो इच्छाएं जो अधूरी रहेगी और कुछ इच्छाएं जो पूरी की और पूरी करने के बाद भी पश्चाताप हुआ, उसको रिग्रेट कहते हैं कि हाय मैंने ये इच्छा पूरी की लेकिन मैंने करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों करी? या फिर मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ये मुझे करना था पूरी जिंदगी में, मैं नहीं कर पाया। तो इस इच्छाओं से, इस इच्छा से भी बाहर आना का मतलब कहते हैं निर्वाणा। निर्वाणा मतलब आपके अंदर की सारी इच्छाएं वो फुल स्टॉप ही लग जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी देर इज ओनली वॉइड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मटीरियल लाइफ। बुद्धिज्म लोग क्या कहते हैं कि मरने के बाद सिर्फ मिट्टी रह जाती है, उनके हिसाब से पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट लोगों को आत्मा का ज्ञान ही नहीं दिया था, इसलिए बुद्धिज्म नास्तिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। तो उसको नास्तिकवाद भी कहा जाता है। एक तो ये लोग बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं करते, पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते। लेकिन भगवत गीता अलग से बताती है। प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता कहती है कि एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मटेरियल लाइफ। तो लोग दीक्षा होती है तो लोग खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नया जन्म, उसको पुनर्जन्म कहा जाता है। दीक्षा को द्विज बॉर्न कहा जाता है। द्विज बॉर्न मतलब सेकंड टाइम यू आर बॉर्न। तो पहली जो लाइफ थी वो आपकी बड़ी मटीरियलिस्टिक लाइफ कटी थी, लेकिन जैसे ही दीक्षा हुई तो दीक्षा होने के बाद सोचा समझा जाता है कि आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ को फुल स्टॉप लग गया है। आज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है? जैसे नारद मुनि जी ने बचपन से ही, पहले से ही आध्यात्मिकता में अपने आप को झोंक दिया है, नारायण नारायण नाम ले लेकर अपने जीवन का परफेक्शन अचीव किया है, तो वैसे ही उसको कहते हैं। अब ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में तपस्या की, इसका मतलब पहले 5 साल ध्रुव महाराज मटीरियलिस्टिक लाइफ में थे। 5 साल के बाद उनकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गई। सो एक्चुअल लाइफ शुरू कब होती है? जब भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी शुरू होगी, उसको कहते हैं, जहाँ पे मटीरियलिस्टिक लाइफ खत्म होती है और स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है, उसको एक्चुअल लाइफ कहा जाता है। उससे पहले की लाइफ को तो बस एनिमल लाइफ कहा जाता है। सो एक्चुअल लाइफ जहाँ पे आपके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु के थ्रू आए, पथदर्शक गुरु के थ्रू आए, माँ बाप के थ्रू, मातृ पितृ देवो भव, माँ बाप के थ्रू आए, माँ के गर्भ में थे तब से ही आए, कहीं से भी आए, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, एक्चुअल लाइफ वहां से शुरू होती है जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको इंट्रोड्यूस हुई। सो वो रियल लाइफ होती है। लेकिन बुद्धिज्म के हिसाब से
रियल लाइफ जन्म से ही शुरू होती है और खत्म भी हो जाती है मरने के बाद। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ हमारी हमारे भगवत गीता के हिसाब से लाइफ खत्म नहीं होती, मृत्यु से कुछ भी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट मृत्यु कैन बी अ न्यू बिगनिंग ऑल्सो। मृत्यु कैन बी अ न्यू बिगनिंग ऑल्सो, कुछ कह नहीं सकते। सो फॉर द ग्रॉस मटीरियलिस्टिक इट इज सफिशिएंट टू नो दैट वन हैज टू एंड दिस मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा एंजॉयर है अपने सेंसेस का, जो बहुत एंजॉयमेंट करना पसंद करता है इंसान, उसको ये मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उसको ये सब बंद करना पड़ेगा। बट पर्सन्स हु आर स्पिरिचुअली एडवांस्ड, लेकिन जो आध्यात्मिकता में लोग हैं, आध्यात्मिकता में आगे जा चुके हैं, उनके लिए तो दूसरी लाइफ है, ये लाइफ के बाद अनदर लाइफ आफ्टर दिस मटीरियलिस्टिक लाइफ। तो जो अभी मैं बताती हूँ, एक नास्तिक इंसान है, नास्तिक इंसान को निर्वाणा जरूरी क्यों है? क्योंकि नास्तिक इंसान के जीवन में भगवान ही नहीं है, हाँ ना। तो उसके लिए इच्छाओं से बाहर आना मतलब निर्वाणा प्राप्त करना, उसके लिए हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान है, क्या उसके लिए निर्वाणा हाईएस्ट स्टेज है क्या? नहीं। उसके लिए जैसे ही उसकी मटीरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी लाइफ खत्म होती है, उसकी आध्यात्मिक लाइफ वेट कर रही होती है, भाई शुरू हो जा अभी। अब तेरे को इसमें भी परफेक्शन अचीव करना है, बहुत आगे बढ़ना है तूने स्पिरिचुअलिटी में, यहीं पे नहीं रहना तूने, तूने बहुत 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 आगे जाना है। तो स्पिरिचुअलिस्ट इंसान की नेक्स्ट लाइफ और भी ज्यादा शुरू हो जाती है, लेकिन नास्तिक इंसान की निर्वाणा पे ही खत्म हो जाती है। निर्वाणा आते ही उसको लगता है बस आई एम डन, आई एम द परफेक्ट, आई एम गॉड, बस मैं ही मैं हूं, मेरे आगे कोई नहीं है। तो उसके लिए निर्वाणा लास्ट स्टेज है। तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए निर्वाणा लास्ट स्टेज होती है। उनको लगता है कि हम शून्य में चले गए, ना हमारे अंदर सत्वगुणी इच्छा है, ना हमारे अंदर रजोगुणी इच्छा है, ना हमारे अंदर तमोगुणी इच्छा है। तो हमें निर्वाणा प्राप्त हो चुका है, शून्यवाद, हम निर्वाणा। तो कुछ लोग इस चक्कर में क्या करते हैं ना, कि जी मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है बिजनेस चलाने की, मैं रजोगुणी इच्छाओं से मुक्त हूँ। ओ मेरी मम्मा बीमार है, लेकिन मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है मम्मा की सेवा करने की, मैं पूरी इच्छाओं से मुक्त हूँ, मैं सत्वगुणी इच्छाओं से मुक्त हो चुका हूँ। ऐसे करके नालायक बन जाता है। तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं ये लोग। कि उनके अंदर ऐसे भी होता है कि लेट उठेंगे सुबह, और मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है सुबह उठ के नाश्ता करने की, मैं तमोगुणी इच्छाओं से बाहर हूँ। बस लेट तक सोते रहेंगे, दिन में सोएंगे, रात को उठेंगे और अपना अपना कुछ मेडिटेशन फॉलो करेंगे और कहेंगे आई एम इन निर्वाणा। गाने सुनेंगे, लंबे लंबे गाने सुनेंगे, सूफी सॉन्ग्स सुनेंगे, कभी कभी, कभी कभी ऐसे मेडिटेशन करेंगे, रात भर मेडिटेशन करेंगे, फिर दिन भर झपकियाँ खा के सोएंगे और माँ को बोलेंगे मैं रात भर मेडिटेशन कर रहा था, डिस्टर्ब मत कर, मुझे खाने के लिए मत दे। सो ऐसे तो नालायक बच्चे होते हैं। सो ये सारे क्या है, इनको निर्वाणा, इनको लगता है मेरे अंदर शून्य इच्छा है, क्या मुझे बोल रहे हो ब्रेकफास्ट करने की, मैं तो इससे ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे तो भूख ही नहीं लगती, क्या मुझे बोल रहे हो डिनर के लिए आने के लिए, मैं रात को 12 बजे भी डिनर कर सकता हूँ मेडिटेशन खत्म होने के बाद, क्या मुझे बुला रहे हो डिनर के लिए। ऐसे करके रूम बंद करके गाने सुनेंगे और मतलब कुछ भी स्टुपिडिटी चलती है। बट इनके लिए निर्वाणा निर्वाणा निर्वाणा, हमें निर्वाणा प्राप्त करना है। फिर जोर जोर से म्यूजिक बजाएंगे, कभी कभी फिर शांत हो जाएंगे, ढेर सारा म्यूजिक बजाएंगे, ड्रम्स रखेंगे रूम में, फिर उसके बाद पसीने आएंगे इनको, फिर स्टिक्स साइड में रखेंगे, फिर मेडिटेशन की पोजीशन में बैठेंगे। ऐसे करके यहाँ से तो शुरुआत होती है, फिर कहीं जाके मॉन्क पोजीशन में सेटल हो जाता है। बहुत लंबा टाइम जाकर फिर कभी ना कभी अगर उनको एसोसिएशन अच्छा मिला, तो शुरुआत से ही बहुत अच्छे से मॉन्कहुड सॉल्व करते हैं वो। लेकिन कितने भी अच्छे मॉन्क हो आप, आपने बचपन से भले ही स्कूलिंग आपने मोनेस्ट्री में करी हो, और आपने मोनेस्ट्री में भी 3 तरीके की विद्याएं सिखाई जाती है। एक तो ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है, दूसरा इच्छाएं पूर्ण करने का शास्त्र सिखाया जाता है, जिसको बहुत मतलब दुनिया ग्लोरीफाई करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से।
और तीसरा उनको निर्वाणा प्राप्त करने का ज्ञान। तो जो तमोगुणी लोग हैं उनको वो ब्लैक मैजिक सिखा देते हैं। जो रजोगुणी लोग हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा देते हैं कि बैठो, बोलो, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ले लो, जो लेना है ले ले भाई, खत्म कर काम। और फिर उसके बाद सत्वगुणी लोगों के लिए वो निर्वाणा का ज्ञान रखते हैं। तो बस यही तक खत्म हो जाती है उनकी उनकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है निर्वाणा में। तो उनके लिए लाइफ निर्वाणा में खत्म होती है। लेकिन जो आध्यात्मिकता में, अब ये सारे लोग ग्रॉस मटीरियलिस्टिक लोग हैं। उनका बहुत सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, उनको कोई लेना देना नहीं है कृष्ण से। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब बहुत ही अहंकारी अप्रोच है। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की इच्छाओं में घिरे रहते हैं ये। तो इसलिए बुद्धिज्म को नास्तिकवाद कहा जाता है, क्योंकि कहीं पे भी भगवान का नाम ही नहीं है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक इंसान जो है, मान लो कर्मकांडी भी है, प्राचीन भारी की तरह, है ना। राजा पुरंजन प्राचीन भारी कर्मकांडी थे या नहीं थे? तो उनकी, जैसे ही राजा पुरंजन की मटेरियल लाइफ खत्म हुई, नारद मुनि जी आ गए, तो मटेरियल लाइफ खत्म हुई या नहीं हुई? लेकिन क्या उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ क्या? उनकी नेक्स्ट स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई या नहीं हुई? नारद मुनि को गुरु मान लिया ना, ऐसा हुआ क्या? यज्ञ हुआ क्या? नारद मुनि बैठे, बैठ प्राचीन बारी, यज्ञ करते हैं, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ, ऐसा हुआ? उन्होंने आए, उनको राजा पुरंजन की कथा सुनाई, एंड ऑल वाज डन एंड डस्टेड ओवर देयर। उन्होंने नारद मुनि जी को गुरु मान लिया और अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर दी। प्रचेतास, प्रचेतास के सामने कौन आए? शिव जी आए। वो तो पानी में आए थे, कौन सा यज्ञ हवन हुआ था, कुछ हुआ था? लेकिन प्रचेतास की जब उनको पत्नी मिली उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई या नहीं हुई? हुई ना। उनके उन्होंने अपनी लाइफ में लास्ट इच्छा मांगी थी कि हमें पत्नी दो। उनकी पूरे लाइफ की लास्ट इच्छा थी कि हमें पत्नी चाहिए, दैट्स ऑल। ध्रुव महाराज के लाइफ की लास्ट इच्छा थी कि मुझे एक ध्रुव लोक चाहिए, लास्ट इच्छा। उसके बाद कुछ इच्छा नहीं मांगी। इट वॉज ओनली कृष्णा, कृष्णा एंड कृष्णा, एवरीथिंग टू प्लीज कृष्णा था। राजा प्राचीन बारी की बस लास्ट, उन्होंने जो पुरंजन के महाराज पुरंजन की कथा सुनी थी, तब उनका लास्ट यज्ञ था। उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ नहीं किया। तो वहां उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी थी। तो ऐसा है नहीं कि हमारे इसमें भी कोई ऐसे है नहीं, मटीरियलिस्टिक लोग थे, मटीरियलिस्टिक, लेकिन वो स्पिरिचुअली एडवांस थे, इसलिए वो मटीरियलिस्टिक लाइफ के बाद उनकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो पाई। लेकिन जो नास्तिकवाद में जाते हैं, बुद्धिज्म में जाते हैं, वो कभी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। फिर वो जो ये होता है ना, विचार, क्या कहते हैं उनको, वो जिद्दू कृष्णमूर्ति टाइप लोग होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो जिद्दू कृष्णमूर्ति को ग्लोरीफाई करते हैं और इसको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक नेम है, मैं भूल गई। सो ऐसे जो थिंकर्स होते हैं सोसाइटी के, जो सिर्फ सोच सोच के ही भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच से ही भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, और बुद्धिज्म की हेल्प से भगवान को किल कर देते हैं। मतलब वो सारे भगवानों को भगवान समझते ही नहीं है, वो बस सोचते हैं कि मेरी सोच ही भगवान है। ऐसे करके वो अपनी थिंकिंग को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देकर ये करते हैं, एडवांस करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ और ही फैलाते हैं। तो वो भी नास्तिकवाद है, जिसमें भगवान के नामों को भी भगवान नहीं समझा जाता, और भगवान का नाम गलती से भी नहीं लिया जाता, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही क्रेडिट भगवान को चला जाता है। अगर हमने कुछ भी बोला, बहुत बड़ा साइंटिफिक लेक्चर दिया कि मंगलयान पे मंगल पहुंचा कैसे, और एंड में सबने बोला श्री राम जी की जय, तो सब क्या सोचेंगे? श्री राम जी की ब्लेसिंग्स की वजह से मंगलयान मंगल पे पहुंच गया, और साइंटिस्ट की मेहनत नाम नाम के लिए ही थी। तो ऐसे सोचेंगे, इसलिए वो गलती से भी, ये जो लोग होते हैं वो भगवान का नाम लिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। ये थिंकर्स बहुत सोच समझ के बुक्स लिखते हैं जिसमें गलती से भी भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। और जो भगवान का नाम लिखने से नहीं डरता, उसको वो एक्सेप्ट करता है कि ये सब भगवान की वजह से हो रहा है।
लेकिन जो भगवान का नाम डिलीट करके फिलॉसफी लिखता है, उसको गारंटी होती है कि गलती से भी मैंने अगर भगवान का नाम लिख लिया ना, तो मेरी सारी मेहनत पानी में। सबको ऐसा लगेगा कि ये तो भगवान ने इसको बल दिया है इसलिए कर रहा है, नहीं तो इसकी क्या औकात है। तो इसको अपनी औकात दिखानी होती है। तू ही बिजी है अपनी औकात दिखाने में, तेरे अंदर, तेरी नजर में अपनी औकात कम है, तो तू लगा पड़ा है अपनी औकात बढ़ाने में। हम क्या कर सकते हैं। सो एक्चुअल लाइफ जो शुरू होती है, वो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होने के बाद ही होती है। उससे पहले की मटीरियलिस्टिक लाइफ तो एनिमल लाइफ होती है। सो बिफोर एंडिंग दिस लाइफ, इफ वन फॉर्चुनेटली बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस, ही एट वंस अटेन्स द स्टेज ऑफ ब्रह्म निर्वाणा। अगर ये खत्म होने से पहले, ये लाइफ खत्म होने से पहले अगर आप गलती से भी कृष्ण भक्त बन जाते हो, तो आपके अंदर निर्वाणा आ ही जाता है। आता ही है नहीं। संडे को सब लोग मूवी देखने जा सकते हैं, लेकिन सब लोग कहाँ जाते हैं, संडे फीस्ट में जाते हैं या नहीं जाते। निर्वाणा आया या नहीं आया। अपनी इंद्रिय तृप्ति की जगह कृष्णा की तृप्ति के लिए चले गए ये लोग। कार्तिक महीने में सब लोग छुट्टी पे दुबई जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, बाहर की कंट्रीज के टिकट काट सकते हैं। लेकिन जाते कहाँ है, मायापुर वृंदावन जाते हैं ना। अयोध्या जाने लगे आजकल। सो क्यों जाते हैं ये लोग, क्योंकि ब्रह्म निर्वाणा ऑलरेडी स्टेज आ चुकी है। तो जैसे ही आप कृष्ण भक्ति में आ जाते हो, निर्वाणा इज अ साइड इफेक्ट। हम तो एम भी नहीं कर रहे ब्रह्म निर्वाणा के लिए। हम तो चलते फिरते हम ये जी रहे हैं निर्वाणा स्टेज, लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे कि हम निर्वाणा में हैं, हम निर्वाणा में हैं, है ना। सो निर्वाणा एंड ऑल दैट इज जस्ट साइड इफेक्ट ऑफ भक्ति। वो कोई बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेज नहीं है। हमारे लिए तो निर्वाणा के बाद भक्ति शुरू हो जाती है, आध्यात्मिकता शुरू होती है। तो हमारे लिए निर्वाणा इज लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, और उसके बाद पीएचडी तो बहुत दूर की बात है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो भगवान के वैकुंठ में और भगवान के यहाँ पे कुछ भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, वैकुंठ में और लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गलती से भी भगवान को रात को सुलाते हो, तो आप ऑलरेडी वैकुंठ में हो। आप सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाते हो, तो आप ऑलरेडी वैकुंठ में ही हो। आपको अगर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का मौका मिल रहा है ना, तो भी आप ऑलरेडी वैकुंठ में ही हो। सो द थिंग इज कि आप वैकुंठ में ही होते हो जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो। सो सिंस बोथ ऑफ देम आर ऑन एब्सोल्यूट प्लेन, टू बी एंगेज्ड इन लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड इज टू हैव अटेन्ड स्पिरिचुअल किंगडम। तो जैसे ही आप प्रेम से करोगे, तो हाँ, प्रेम से नहीं करोगे, जबरदस्ती करोगे, मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है, जबरदस्ती करोगे, तो फिर आप वैकुंठ में नहीं हो। फिर आप भौतिक जगत में ही हो, क्योंकि आपके अंदर तो अपसेट वाला मूड है, सैड वाला मूड है, एंगर वाला मूड है। लेकिन आपके अंदर अगर खुशी वाला मूड होगा, आप खुशी खुशी करते हो, तो आप ऑलरेडी वैकुंठ में हो। क्योंकि वैकुंठ में रहने वाले रोते हैं क्या? नहीं। वैकुंठ में रहने वाले गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। वैकुंठ में रहने वाले सैड होते हैं क्या कभी? नहीं। तो इसका मतलब ये तीन मूड्स वैकुंठ के है ही नहीं। वैकुंठ के मूड्स कैसे? स्माइल करना और खुशी खुशी करते रहना, एज इफ कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होना है कुछ पड़ी नहीं होती उनको। अगले मिनट में क्या होने वाला है, एग्जाम्पल अगर चाहिए ना भौतिक जगत में, तो आप एक छोटे बच्चे को ले लेना, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा या फिर एलकेजी यूकेजी का बच्चा ले लेना, नर्सरी का भी बच्चा ले सकते हो। क्या नर्सरी का बच्चा एक मिनट के लिए भी सोचता है कि 5 मिनट बाद उसकी वैन आने वाली है और उसने वैन में बैठ के स्कूल जाना है? उसको अगले मिनट का पता नहीं होता कि वो वैन में बैठने वाला है। फिर वैन स्कूल में पहुंचती है, उसको अगले मिनट का भी पता नहीं होता कि उसको वॉक करके स्कूल में जाना पड़ेगा। वो सोचता नहीं है कि उसको अगले मिनट का भी सोचने की क्षमता नहीं होती। वो वैन में भी उतना ही उछलेगा, कूदेगा, एंजॉय करेगा। स्कूल में भी उछलेगा, कूदेगा, एंजॉय करेगा। सामने टिफिन आएगा तो खाएगा, बॉटल होगी तो पानी पिएगा। वो आगे का कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं सोचता आगे का। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा बच्चा, वो भी आगे का, उसको तो कल एग्जाम है, इसके बारे में भी पता नहीं, समझ ही नहीं आता। वो तो माँ बाप उसको सीरियसली कुछ, अगर कुछ होंगे पैरानॉइड पेरेंट्स, तो वो काफी उस पे प्रेशर डालते होंगे। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को कोई आइडिया नहीं होती कि एग्जाम क्या है, कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। उसके लिए तो हर रोज नोटबुक पे लिखना, वैसे ही पेपर पे लिखना। तो ये वाली जो स्टेज है वैसी वैकुंठ में होती है। एक ना 1 मिनट आगे सोचते हो आप, ना 1 मिनट पीछे की सोचते हो। आप इतना प्रेजेंट में रह के इतना खुशी खुशी भगवान की सेवा करते हो, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते। मैं बताऊं, इतनी बड़ी बीमारी है ना
कि लोग खाते हुए भी सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे। ब्रेकफास्ट करते हुए सोचेंगे सोचेंगे हम लंच में क्या खाएंगे। लंच खाते हुए सोचेंगे हम डिनर में क्या खाएंगे। और डिनर खाते हुए सोचेंगे कल सुबह और कल दोपहर को हम क्या खाएंगे। इतनी ज्यादा बीमारी है लोगों को कि कल की सोचना, परसों की सोचना, 10 साल आगे की सोचना, 15 साल आगे की सोचते ही रहते हैं। हालांकि उससे हाथ में तो कुछ आता नहीं है, बट उनको लगता है सोच सोच के उनको बड़ा अच्छा फील होता है। उनको पता ही नहीं कि वो बहुत ही दुखी स्टेट में जी रहे हैं, लेकिन ये हैबिट हो जाती है ना, उनको दुखी रहने की हैबिट हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा दुख है। अगर ये इतना एंजॉयमेंट वाला सिचुएशन होता ना, मूड होता ना, आगे की सोच कर खुश होना, तो ये वैकुंठ में भी होता है। क्या वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है ना। सो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो और उस वक्त सिर्फ कीर्तन कर रहे हो, गाना गा के सुला रहे हो, या गाना गा के उठा रहे हो, आरती करके उठा रहे हो, कुछ भगवत गीता के श्लोक करके उठा रहे हो, आप ऑलरेडी वैकुंठ में हो। आपको तो अलग से वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। सो इन मटीरियल वर्ल्ड देर आर एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देर आर एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की एक्टिविटीज होती है, वैकुंठ में कृष्णा की तृप्ति के, कृष्ण तृप्ति की एक्टिविटीज होती है। तो कृष्ण तृप्ति की एक्टिविटीज वर्सेस इंद्रिय तृप्ति की एक्टिविटीज। इंद्रिय की सेवा करो, नहीं तो कृष्णा की सेवा करो। सो अटेनमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग दिस लाइफ इज इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ ब्राह्मण, एंड वन इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियस सर्टनली ऑलरेडी एंटर्ड द किंगडम ऑफ गॉड। तो जो भी भगवान की सेवा कर रहा है प्रेजेंट में जो सक्सेसफुल हो गया ना प्रेजेंट में रहने में, लिव इन द नाउ कहा जाता है। नाउ मतलब अब में जीना है, अब में जीना है। ना पीछे कल क्या हुआ, 2 घंटे पहले क्या हुआ, आज क्या हुआ, ऐसे नहीं। कल क्या होने वाला है, ऐसे भी नहीं। अब में जीता है। और अब में कृष्ण को याद कर रहा होता है। अब भी मैं कृष्ण को याद कर रहा हूँ, अब भी मैं कृष्ण के चरण कमलों को याद कर रहा हूँ। जो अब में जीने में सक्सेसफुल हो गया, वो ऑलरेडी वैकुंठ के अंदर चला गया है। इसलिए आचार्यों को कहा जाता है नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला प्रविष्ट मतलब क्या होता है, अब में वो कृष्णा की लीला को याद कर रहे हैं, अब में कृष्णा की लीला के अंदर जा चुके हैं, और अभी वो कृष्णा की लीला के अंदर जाकर कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। अभी इसमें उनकी बॉडी है क्या, होने और ना होने के बराबर है। वो जिंदा है तो भी अब भी कृष्णा की लीला के अंदर है, मृत्यु हो गई तो भी वो कृष्णा की लीला के अंदर है। तो उनको शरीर के होने का और ना होने का कोई फर्क ही पता नहीं होता, फर्क पड़ता भी नहीं है उनको। इसको कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। प्रविष्ट मतलब एंटर कर जाना। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर करना होता है। अब में आपको एंटर करना है कि मैं जेन्युइनली लड्डू गोपाल जी को सुला रहा हूँ, मैं जेन्युइनली लड्डू गोपाल जी को उठा रहा हूँ, मैं जेन्युइनली माला बना रहा हूँ, मैं जेन्युइनली अगरबत्ती लगा रहा हूँ, गोपाल जी के सामने मैं सेवा दे रहा हूँ। मैं अभी में हूँ, ना मैं 5 मिनट बाद में हूँ, ना मैं 5 मिनट पहले। अंडरस्टूड। So Brahman is just opposite of the matter. ब्रह्म स्थिति मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटीरियल एक्टिविटी। तो ब्रह्म स्थिति कहते हैं ना, ब्रह्म स्थिति में पहुंच गया वो ब्राह्मण। ब्राह्मी स्थिति मतलब क्या क्या होता है कि आप कोई भी मटेरियल एक्टिविटी के प्लेटफॉर्म में नहीं होते हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे उसने शादी की लेकिन ब्रह्म स्थिति में चला गया। ब्रह्म स्थिति मतलब शादी की, वाइफ को भाग के चला, वाइफ को छोड़ के भाग के चला गया ब्रह्म स्थिति में। ब्रह्म स्थिति मतलब उसको मटेरियल एक्टिविटीज करने का कोई मन नहीं कर रहा। सो डिवोशनल एक्ट सर्विस ऑफ लॉर्ड इज एक्सेप्टेड इन भगवत गीता एज लिबरेटेड स्टेज। भगवत गीता में कहते हैं भक्ति करना मतलब ऑलरेडी आप मुक्त जीव हो। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप मुक्ति ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। अब आपको भगवान के पास जाके ये बोलने की जरूरत नहीं कृष्णा मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं, तू ऑलरेडी कृष्ण का नाम ले रहा है, तू ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। अब क्या मांग रहा है, जो ऑलरेडी तेरे पास है तू कैसे मांग रहा है, तेरे पास ऑलरेडी एक स्वेटर है। अभी तू थोड़ी ना जाके बोलेगा मुझे एग्जैक्ट सेम स्वेटर दे दो, नहीं बोलेगा, तेरे पास है वो स्वेटर। वैसे तेरे को ऑलरेडी मुक्ति मिल चुकी है, मुक्ति की स्टेज पे तू पहुंच गया है, अब तू कौन से मुक्ति मांगेगा। तो भक्ति जो होती है वो ऑलरेडी आपको मुक्ति मिल गई होती है, उसके बाद ही भक्ति मिलती है। सो देयर फॉर ब्रह्म स्थिति इज लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। भक्ति विनोद ठाकुर जी सेकंड चैप्टर को ये जो समराइज करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि
सेकंड चैप्टर में कर्मयोग और ज्ञान योग बताया गया है और थोड़ा थोड़ा भक्ति योग भी बताया गया है। इसमें कर्मयोग और ज्ञान योग बहुत ही डेप्थ में डिस्कस हुआ है सेकंड चैप्टर में। और भक्ति योग की थोड़ी सी आइडिया है। भक्ति योग हमें सेकंड चैप्टर में कब मिला? हमें मिला लास्ट श्लोक में, पिछली बार जो हमने श्लोक किया था उसमें मिला, और आज के श्लोक में मिला। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरीके से सेकंड चैप्टर में कर्म योग डिटेल में पता चलता है, ज्ञान योग डिटेल में पता चलता है, और हल्का सा भक्ति योग पता चलता है। ये कहकर प्रभुपाद सेकंड चैप्टर के पर्पॉट्स को खत्म करते हैं। भगवत गीता की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चंस? माता जी